तुम लोग इत्मीनान से घर पे कॉपी कर लेना. लेट्स बिगिन. आई होप दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. We will do some basic isomerism today. Naturally, compounds having same molecular formula and different physical and chemical properties. The difference in properties are because they're different compounds. So they're called isomers to each other, and the phenomena is called isomerism. This is a basic bifurcation. This is a basic classification. Isomers can be broadly divided into two heads: structural and stereo. स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस. स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस. द टर्म स्टीरियो मीन्स थ्री डिमेंशनल स्पेस. स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस. विल कम टू इट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस टॉपिक. विल बिगिन विद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर सेम रहेगा. स्पेस में ओरिएंटेशन, यू नो, थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट अलग अलग होगा, एटॉम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ग्रुप्स का. स्ट्रक्चर वुड बी सेम. यहाँ पर देयर विल बी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. Structural isomers will be those which will be having structural differences. There of these 6 types: chain isomers, position isomers, functional isomers, metamers, tautomers and ring chain isomers. Ring chain भी एक तरह का positional isomer ही होता है. Sorry, ring chain भी एक तरह का functional isomer ही होता है. We'll talk about it. And as I told you, we will, you know, begin with some basic definitions, examples, and later on maybe, you know, we'll solve some problems and gradually we'll raise the bar. So I think this is clearly visible. I'll want some people to respond. We'll take up stereoisomerism, configurational, geometrical, optical. You know, this is very very little given in NCERT. Actually NCERT में stereoisomerism class 11 में दिया ही नहीं है. But you know, this is a different aspect of organic chemistry altogether. Stereochemistry इसके बिना सीखा ही नहीं जा सकता है. We'll look into all of it in great details. The story is just going to begin today. Structural isomerism, you can see, are isomers having same formulae but different structures. Structural isomers में structure अलग अलग होगा. They're of the following types, and then I'm going to know the following types. All right. In today's class, I guess we'll be able to, you know, get started with tautomerism. I told you ring chain could be taken as one kind of functional isomerism only. We'll talk about tautomerism in more details in all likelihood in the next session. We'll begin with chain isomerism though. We'll start with chain isomerism, which is also called nuclear isomerism. चेन आइसोमरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, मैं इसको स्केलेटल आइसोमरिज्म भी बोलता हूँ. Isomers differ in the nature of the longest carbon chain in the compound. So naturally from the very look of it, we have done this in the past. 4 कार्बन का 2 स्केलेटन होता है. 4 कार्बन का चेन N-ब्यूटेन. 3 कार्बन का चेन आइसोब्यूटेन. 5 कार्बन का 3 स्केलेटन होता है ABC. 5 का चेन, 4 का चेन, 3 का चेन. चेन का लंबाई अलग अलग है. 5 का चेन, 4 का चेन, 3 का चेन. A and B and C are chain isomers. I think you all are happy with this. We'll obviously look into more examples when the time is right. I think you are understanding me. Some people will want to respond. पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन सेम रहता है या रिंग सेम रहता है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग होना चाहिए. आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट. और पोजीशनल आइसोमेरिज्म के लिए चेन का सेम रहना जरूरी है. मैं ना अभी बिल्कुल डाउनराइट बेसिक्स बता रहा हूँ. आई एम काइंड ऑफ जस्ट इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स टू यू राइट नाउ. व्हेन द टाइम इज राइट, यू नो, मे बी विल लुक इनटू a few complicated dicey cases. अभी आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज टू यू. फंक्शनल ग्रुप नहीं रहने से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी अलग अलग रहने से पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं, पर उसके लिए रिंग या चेन एक ही जैसा होना चाहिए. तो 4 का ही चेन होना चाहिए दोनों में. चेन का साइज सेम होना चाहिए. ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन. पोजीशन में अंतर है पाई बॉन्ड का. नॉर्मली 5 कार्बन का हम लोग अलग अलग चेन देख सकते हैं, पर यहाँ पर देखो चेन सेम रखे हैं. पोजीशन सिर्फ डिफरेंस के लिए चेन सेम रखेंगे. पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 3 ओल. एग्जैक्टली पोजीशन आइसोमर के लिए आई वांट द चेन टू बी द सेम. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिक में, रेदर एरोमेटिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिक में ये जो 3 पोजीशन होता है, व्हेन 2 सिमिलर ग्रुप सबटेंड 60 डिग्रीज, यू नो, दे आर कॉल्ड ऑर्थो. व्हेन द 2 मेक 120 डिग्रीज विथ ईच अदर, which are like 1 and 3 positions in an aromatic benzene ring, you call it meta. And when the 2 are subtending 180 degrees, which is 1,4 position, 1 2 1 3 1 4 position में भी देखो बेंजीन रिंग सेम है. एक मिथाइल लगा रहने से टोलुइन बोलते हैं. एक मिथाइल लगा रहने से कंपाउंड को टोलुइन बोलते हैं.
2 मिथाइल लगा रहने से जाइलिन बोलते हैं, जाइलिन। तो धीरे धीरे करके ना हम लोग सब्जेक्ट भी सीखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग नाम भी सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आई गिव अ लिस्ट ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू यू ऑन अ गिवन डे एंड आई वांट टू मग इट अप। यू नो, ग्रेजुअली यू गेट टू नो अबाउट न्यू कंपाउंड्स, न्यू नेम्स। आई होप ऑर्थोमेटा पैरा सबको पहले से पता है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, naturally they are position isomers because only the positions are different. Hope we can move on. आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म जैसा नाम है, नाम देख के समझ में आता है। आइसोमर्स डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। अब मैं ये पहले थोड़ा सा बताया था, फंक्शनल ग्रुप असाइंस फंक्शनैलिटी टू द कंपाउंड। अरे एक कंपाउंड का सारा बिहेवियर एसिड जैसा होता है बिकॉज उसमें COOH ग्रुप लगा रहता है। अ कंपाउंड विल बिहेव लाइक एन अमाइन प्रोवाइडेड अ NH2 ग्रुप इज देयर। सो फंक्शनल ग्रुप असाइंस फंक्शनैलिटी टू द कंपाउंड। नेचुरली अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है सो विल हैव मैक्सिमम डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। अगर कभी ऐसा पूछा किस तरह का आइसोमर्स का प्रॉपर्टीज का डिफरेंस मैक्सिमम है, नेचुरली फंक्शनल आइसोमर्स का डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज मैक्सिमम होगा because they'll belong to two different class of compounds altogether. I told you this is very basic which we are doing right now. Get oriented, get oriented. You know, in due course this would be like always recalled. ये बेसिक इंफॉर्मेशन जैसा सबको पता होना चाहिए, ये कभी भूलने का नहीं है। अल्कोहल ईथर दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, अल्कोहल ईथर दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। नेचुरली दे आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अल्कोहल ईथर्स आर टू डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स ऑल टुगेदर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है। CnH2n+2O। मैं यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ, मैंने छोटे छोटे कंपाउंड लिए, 2 कार्बन 3 कार्बन का एग्जाम्पल लिया है। नेचुरली दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज एन ईथर, एंड अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। यस और नो? So, you know, this would become a part of your knowledge now. This would become a part of your knowledge, your understanding. These should be like, you know, ensconced into your heads. Alcohols, ethers, acids, esters, ये सबको पता रहता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला साफ सुथरा नोट्स बनाओगे, लिखते रहोगे। एसिड ईस्टर दोनों का फॉर्मूला C3H6O2। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल से लिए हैं। एसिड ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, तो नेचुरली पूरा केमिस्ट्री अलग होगा। ठीक है बच्चे लोग? ठीक है बच्चे लोग, एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स, साइनाइड आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर्स, CnH2NO। ऐसा नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू वांट टू मग अप योर नोट्स। This is not class 10. It will not get over in a few days of mugging up or revision before the exam. You need to study every day. You do not need to memorize. You need to learn. You need to learn. You need to know. जो जो याद करते हो वो भूलते हो। यू फॉरगेट व्हाट यू मेमोराइज, यू डू नॉट फॉरगेट व्हाट यू नो और व्हाट यू हैव लर्नड। सो बेसिकली इट्स अबाउट, यू नो, copying down the notes very effectively, very neatly, knowing these from the initial days. Aldehydes, ketones, naturally aldehyde group है, टर्मिनल कार्बोनिल, नॉन टर्मिनल कार्बोनिल कीटोन है। हाँ, साइनाइड वाले का, साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड का एक नाम नाइट्राइल भी होता है, साइनाइड का एक नाम नाइट्राइल भी होता है, साइनाइड। हाँ हाँ, अब नाइट्राइल का स्पेलिंग देख लेना यार, IUPAC नोमेनक्लेचर में नाइट्राइल का स्पेलिंग देख लेना। बात है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड होने से फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। अब स्पेलिंग के अंदर मत घुस जाओ तुम, ठीक है? अरे हाँ ना, ओके सर, हेलो सर, कुछ तो बोलो। हाँ, बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे। अभी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो जब नोमेनक्लेचर का बात होगा तब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आइसोसाइनाइड का कोई पर्टिकुलर IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है? आइसोसाइनाइड ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कितने जन हैं मीटिंग में पीयूष बाबू, कितने जन हैं? अच्छा ठीक, फोटो खींच लेना, फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेके भेज देना, ठीक है बबुआ?
चलो बच्चे, बाकी तो हमको पता ही है। सुनो, अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, बहुत काम में भेजने वाला हूँ, अभी चालू हो रहा है। किताब पढ़ो, मैं पहले ही बोलता हूँ, टीचर का नोट्स ये सब सप्लीमेंट्री होता है। किताब पढ़ो, जो किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको पूरा खत्म करो। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुनो, एक चेन से लगा है 1 डिग्री, 2 चेन से लगा है 2 डिग्री, 3 चेन से लगा है 3 कार्बन से लगा है 3 डिग्री। याद है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब मेरा बात समझो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये तीनों का फॉर्मूला सेम होगा, तीनों C4H10O होगा। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को कभी भी हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बोलते हैं। हो सकता है ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हो जाए, या हो सकता है ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हो जाए, पर तीनों अल्कोहल ही है, तीनों अल्कोहल ही है। जब अमाइंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा, जब अमाइंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस होगा, सारा रिएजेंट के साथ में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग जैसा बिहेव करेगा। तो इतना डिफरेंस है इसमें, अमाइंस का केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में इतना डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम लोग बोले कि ये लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आ रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हलाइड हो, उसको हम लोग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, दोनों को पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, फंक्शनल नहीं बोलते हैं, बिकॉज इवेंचुअली है तो अल्कोहल ही। पर यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर रिएजेंट के साथ ही अलग अलग बिहेव करेगा। तीनों का केमिस्ट्री में इतना अंतर होगा कि हम लोग बोलेंगे कि इतना अंतर है तीनों का प्रॉपर्टीज में, तीनों को अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स ही बना देते हैं। याद रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर कंसिडर्ड फंक्शनल आइसोमर्स। याद रहेगा तो चलो, अच्छा बात है। मेटामरिज्म कोई पढ़ो तो, समवन विल वांट टू रीड मेटामरिज्म, जैसे स्कूल में डिक्टेशन होता है। साथ में पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, साथ में पढ़ने से कोई कानून नहीं टूटेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अंडरलाइन किया है। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हो सकता है, बोलो? हाँ, बाइवैलेंट का मतलब होता है कि दो तरफ से अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब दो तरफ से अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। जैसे ईथर में यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो ऐसा जितना भी फंक्शनल ग्रुप होगा जहाँ दो तरफ से अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, उसको हम लोग बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब ईथर में एक ऐसा ईथर हो सकता है, एक ऐसा ईथर हो सकता है, 2 2 और 1 3। नेचर का मतलब होता है, नेचर का मतलब होता है काउंट, नेचर का मतलब होता है काउंट। यहाँ पर नेचर का मतलब होता है काउंट। 2 2 1 3, 2 2 1 3, ऐसे समझ में आता है? 2 2 इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। मैंने इसीलिए जान के नाम नहीं लिखा, मैं किसी का नाम नहीं लिखा, बिकॉज आई नो टॉकिंग अबाउट द नेम्स यू नो विल किल मोर टाइम, तो मैं किसी का नाम नहीं लिखा हूँ। बॉन्ड लाइन समझना सीख जाओ। 2 2 1 3, 2 2 1 3, इथॉक्सी इथेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये दोनों आपस में मेटामर है, क्योंकि चेन का लंबाई अलग अलग है, 2 2 और 1 3, ये बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब अगर मान लो ऐसा एक आइसोमर होता सी, ये देखो बी और सी में ना, बी और सी में बहुत किताब में भी गलती रहता है, बी और सी में बहुत किताब में भी गलती रहता है। देखो बी को हम लोग ना 1 1 2 3 लिखेंगे तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे, और सी में जब चेन लिखेंगे 1 2 3 तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो, ये बहुत सारा किताब में भी गड़बड़ रहता है। बी और सी में देखो, बी और सी में बी को हम लोग बोलेंगे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, सी को हम लोग बोलेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये दोनों आपस में मेटामर नहीं है। 1 3 1 3, जब तक 1 3 1 3 होगा तो मेटामर नहीं होगा। हो सकता है पोजीशन आइसोमर हो, यहाँ पर पोजीशन आइसोमर ही होगा। देखो बी और सी को मैं पोजीशन आइसोमर बोला हूँ। ए और सी लेकिन मेटामर है, ए और बी मेटामर है, 2 2 1 3, 2 2 1 3। ठीक है, अब बी मान लो एक अल्कोहल है, तो ए और बी तो मेटामर है, ए और बी से ही तो कहानी चालू हुआ है, ए और बी से तो कहानी चालू हो गया है, कहाँ गायब हो जाते हो? ए और बी से जो कहानी चालू हुआ है, 2 2 1 3,
ये 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये आपस में लेकिन पोजीशन आइसोमर है। ये 2 2 ये 1 3 ए और सी आपस में मेटामर है। अगर एक अल्कोहल बना दिया तो ये सबके साथ में फंक्शनल आइसोमर है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। वही तो बोले हम, मेरा ही बात तो तुम्हें मेरे को ही सुना रहे हो। ये अगर अल्कोहल है और बाकी सारा ईथर है तो कोई भी ईथर कोई भी अल्कोहल के साथ में फंक्शनल आइसोमर होगा। कोई भी ईथर कोई भी अल्कोहल के साथ में फंक्शनल आइसोमर होगा। बोलना क्या चाहते हो पीयूष बाबू, बोलो, कुछ नया बोलना चाहते हो? हाँ, बी और सी मेटामर इसलिए नहीं क्योंकि 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 1 3 मेटामर नहीं होगा। नेचर का मतलब काउंट होता है। 1 3 1 3 दोनों 1 3 1 3 है तो समझ गए बच्चों? बहुत सारे किताब में बी और सी को मेटामर बोल देता है। बहुत सारा किताब में बी और सी को मेटामर बोल देते, समझ लो बी और सी लेकिन पोजीशन आइसोमर है। सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जी साहब, जैसे 1 मेथॉक्सीप्रोपेन 2 मेथॉक्सीप्रोपेन है, दिस इज लाइक 1 मिथाइल 2 मिथाइल, दिस इज लाइक 1 क्लोरो 2 क्लोरो। आगे बढ़ते हैं। बाईवैलेंट मतलब जिसका दो हाथ रहेगा, बाईवैलेंट मतलब जिसका दो हाथ रहेगा, दोनों हाथ पे एक एक एल्काइल ग्रुप रहेगा। तो और बाईवैलेंट कहाँ होता है? थायो, थायो या थियो, थायो या थियो ईथर सल्फर के लिए यूज करते हैं। थायो या थियो सल्फर के लिए यूज करते हैं। देखो बच्चे लोग, थायो या थियो सल्फर के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन की जगह सल्फर है तो इसको बोलेंगे थियो ईथर, थायो ईथर। 2213 2213 2213 2213 मेटामर है, ठीक है? नहीं, एक जैसा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन और सल्फर एक जैसे थोड़ी रहते हैं। तुम पानी में तुम H2O पानी की जगह H2S कल से पीना शुरू कर दो, फिर मजाक करते हो। ज्यादा मजाक करोगे तो आईपीएल फाइनल वाले टाइम में क्लास रखने लग जाएंगे, सोच लेना। 2 2 1 3 2 2 1 3 थायो ईथर, ईथर की जगह सल्फर होगा तो नाम हो जाएगा थायो ईथर। ईस्टर, देखो ईस्टर समझ में आता है, ईस्टर भी एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप। दो का एसिड दो का अल्कोहल, याद करो मैं जब एसिड बेस जब ईस्टर पढ़ाता हूँ, मैं जब ईस्टर पढ़ाता हूँ एल्कोक्सी एल्केन का नाम मैं बताता हूँ, ये एसिड वाला ये अल्कोहल वाला, ये एसिड वाला ये अल्कोहल वाला से बताता हूँ, ये अल्कोहल से आता है ये एसिड से आता है, ये एसिड वाला ये अल्कोहल वाला। दो का एसिड दो का अल्कोहल, दो का एसिड दो का अल्कोहल, तीन का एसिड एक का अल्कोहल, 2 2 3 1 2 2 3 1। नाम बोलोगे तो खुशी का बात है, इथाइल इथानोएट मिथाइल प्रोपानोएट, 2 2 3 1। आगे बढ़े। 2 डिग्री अमाइंस में भी ऐसा हो सकता है, 2 डिग्री अमाइंस में भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज 2 डिग्री अमाइंस में यू आर हैविंग टू अल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ एन NH ग्रुप, सो NH कैन बी टेकन एज अ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस कैन बी टेकन एज अ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। दो हाथ है, 2 2 1 3 2 2 1 3, ये सब दूध भात है यार, बच्चा वाला चीज है, बस जान के रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। और अमाइड में भी ऐसा ही होगा, अमाइड में भी ऐसा होगा। अमाइड में भी देखो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप रख सकता है, ये 2 का एसिड 2 का अमाइन, ये 3 का एसिड 1 का अमाइन, 2 2 3 1। ठीक है बच्चे लोग, पहला वाला इथाइल इथानामाइड, हाँ, दूसरा वाला, वाह बहुत बढ़िया, मिथाइल प्रोपेनामाइड, कमाल ही कर दियो यार। आगे बढ़ते हैं, चल अब ये पोर्शन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। हाँ, अब आज हम उतना नोट्स लिख भी नहीं पाए, और मैं बोला ये थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे भी शायद पढ़ाना चाहूँगा। टोटोमेरिज्म में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। सबसे पहले आइसोमर्स एग्जिस्ट एज टू इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स, इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स, इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है टॉटोमर और बाकी कोई भी आइसोमर में। टॉटोमर और बाकी कोई भी आइसोमर में डिफरेंस है
बाकी सारा आइसोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। अगर ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन भी है, मेरा बात ध्यान से सुनो, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन तो दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, 1 ब्यूटानॉल 2 ब्यूटानॉल दो अलग अलग कंपाउंड है। एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स तो डेफिनेटली अलग अलग कंपाउंड है, पर एकदम मिलता जुलता एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भी दो अलग अलग कंपाउंड है। द टू डिफरेंट कंपाउंड्स, टॉटोमर्स में दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होता, एक ही कंपाउंड का दो फॉर्म होता है। आइसोमर्स एग्जिस्ट एज टू इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स। टॉटोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होता, टॉटोमर्स एक ही कंपाउंड का दो अलग अलग फॉर्म होता है, विच आर इंटरकन्वर्टिबल। इट्स मोर लाइक ए कन्वेंशन। ये शुरू से ही आइसोमरिज्म में पढ़ा जा रहा है, शुरू से ही आइसोमरिज्म में पढ़ा जा रहा है, तो इट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आइसोमरिज्म। इट्स मोर लाइक अ फिनोमेना, विल नो मोर अबाउट इट, बट अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ आइसोमरिज्म, जहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड होता है, टॉटोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होता है, टॉटोमर्स एक ही कंपाउंड का दो अलग अलग फॉर्म होता है। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कन्वे दिस फैक्ट टू यू। अच्छा, पहला ये डिफरेंस है, टॉटोमर्स एक ही कंपाउंड का दो अलग अलग फॉर्म है। नाउ द डिफर इन द पोजीशन ऑफ वन न्यूक्लियर जनरली हाइड्रोजन। एक एक आराम आराम से समझो, जो दो फॉर्म्स होता है, द डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियर जनरली हाइड्रोजन, ठीक है, जो दो अलग अलग फॉर्म होता है, द डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियर जनरली हाइड्रोजन, द टू इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स कोएग्जिस्ट via a dynamic equilibrium and their relative amount depend on various factors. The two interconvertible forms, रूम के अंदर मिलेगा कि रूम बंद कर दो, क्लास चल रहा है, समझ में नहीं आता है। The two interconvertible forms coexist मतलब एक साथ ही रहता है via dynamic equilibrium। हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ना ऑर्गेनिक के साथ में थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर तुम लोग को फिजिकल का भी थोड़ा बहुत चीज पढ़ाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम एंड ऑल विल वांट टू लर्न सूनर देन लेटर। आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग मी। एंड देयर रिलेटिव अमाउंट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये जो दो फॉर्म रहता है, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट इक्विलिब्रियम। दिस इज गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। This will be a fascinating aspect of physical chemistry. Dynamic equilibrium kya hota hai, you will learn all about it. But as I told you, these are not two different compounds, these are two forms of the same compound. We'll learn more about it, ठीक है, we'll learn more about it। अभी वो तो सिर्फ इस तरह का कंपाउंड के लिए, नॉर्मल कंपाउंड के लिए, बाकी बाकी डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर। नॉर्मली कीटोफॉर्म ज्यादा रहता है, ठीक है, तो कितना एनोलाइज करेगा नहीं करेगा वो सारा फैक्टर्स तुम लोग अच्छा से मन लगा के पढ़ो। होपफुली वो सब हम लोग अगला सेशन में पढ़ेंगे। पर सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है कीटोनोल टॉटोमेटिज्म। द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज कीटोनोल टॉटोमेटिज्म। आई होप वी कैन ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये दो अलग फॉर्म है एक ही कंपाउंड का। कीटो फॉर्म बिकॉज नेचुरली एक कीटोनिक ग्रुप है। इनोल, इनओल, 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 इनोल मतलब इनओल, ये एक ही साथ रहता है। कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म। द फिनोमेना इज बोथ एसिड एंड बेस कैटलाइज। कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म, देखो इनोल समझ में आ रहा है ना, इनोल डबल बॉन्ड के लिए इन, अल्कोहल के लिए ओल, कीटो, इनोल। द टू डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियर जनरली हाइड्रोजन। याद दिखना, ये हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन हट के वहां चला जा रहा है, ये हाइड्रोजन उठ के वहां पे चला जा रहा है। हम लोग और सीखेंगे। ये दोनों एसिड और बेस कैटलाइज होता है। कीटो से इनोल बनने की प्रक्रिया को, कीटो से इनोल बनने की प्रोसेस को हम लोग इनोलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे लोग, अब यहाँ से पहला बार तुम लोग का थोड़ा सा मैकेनिज्म चालू हुआ है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब, दिस इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड पोलर रहता है, सी डबल बॉन्ड वो पोलर रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको खींच के रखेगा। पाई बॉन्ड टूटता है इस तरह से, ये ज्यादा पोलर है, खींच के रखेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नेचुरली H प्लस O माइनस के पास जाएगा। एसिड कैटलाइज मतलब क्या, एसिड कैटलाइज मतलब H प्लस से चालू करेंगे, एसिड से चालू करेंगे, H प्लस से चालू करेंगे, ये ऊपर जाएगा, O माइनस विल गेन H प्लस। अब ये तो O माइनस H प्लस यूटिलाइज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव बचा, ये पॉजिटिव बचा,
अब जो नेक्स्ट कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मैं कैसे तोड़ रहा हूँ ये देखो, H प्लस तोड़ रहा हूँ। H प्लस का मतलब होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया है। H प्लस का मतलब होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया है। H प्लस का मतलब होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है। जब H माइनस होगा तो देखना इसको बॉन्ड के साथ तोड़ूंगा मैं। जहां पर H माइनस होगा बॉन्ड के साथ जाएगा। H प्लस मतलब अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है। तो देखो मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ कि ये बॉन्ड अपना छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर यहाँ पर आएगा ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैटेलाइज्ड है, कैटलिस्ट तो इवेंचुअली आएगा फिर जाएगा। हम लोग कैटलिस्ट का कहानी भी आराम से पढ़ेंगे, पर कैटलिस्ट डज नॉट गेट एडेड अप इन दिस मैनर। यू नो, कैटलिस्ट विल स्टार्ट अ प्रोसेस, विल इवेंचुअली कम आउट। H प्लस ऐड होगा तो H प्लस निकलेगा भी। बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म में OH माइनस बेस क्या करेगा, अल्फा H प्लस पहले O माइनस के पास किया। ठीक है, अभी ये पहला बार देख रहे हो इसलिए नया लग रहा है, बाद में इसका आदत पड़ जाएगा। इसको प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसको प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अभी पहला बार देख रहे हो, बाद में इसका आदत पड़ जाएगा। ये बॉन्ड पोलर है, ये उठ के यहाँ पर जाएगा, O माइनस H प्लस के साथ में OH होगा, पॉजिटिव यहाँ पर बचेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड उठ करके ऊपर जाएगा, जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। जब ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। H प्लस गया नेगेटिव के पास, न्यूट्रल कर दिया, ये पॉजिटिव बच गया। अबे एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड डाला है तुम मीडियम के अंदर में। एसिड कैटेलाइज्ड है तभी ना H प्लस से चालू कर रहे हैं। एसिड का मतलब ही तो H प्लस होता है, और क्या होता है। तो यहाँ पर CH3 नहीं है, पागल हो गए हो। यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे CH3 नहीं है, CH3 उसी 3 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन निकाल के दिखा रहा हूँ। एसिड कैटेलाइज मतलब एसिड से प्रोसेस चालू कर रहे हैं। एसिड मतलब H प्लस। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पहला बार देख रहे हो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मेरा बात। ये बॉन्ड पोलर होता है, ये ऊपर जाएगा O माइनस C प्लस, H प्लस O माइनस के पास गया, OH बना, ये पॉजिटिव बचेगा यहाँ पर। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। और जो फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये सब टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे करके सीखो। अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है जो पहले आएगा वही जाएगा। कैटलिस्ट सिर्फ प्रोसेस को स्पीड अप करता है, कुछ ऐड कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। H प्लस आया, H प्लस गया, ये H प्लस यहाँ से गया, ये बॉन्ड यहाँ उतर गया। जब ये बॉन्ड उतरा यहाँ पर पॉजिटिव चला गया, कीटोसिनोल बन गया। बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म मतलब बेस से चालू करेंगे। बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म मतलब बेस से चालू करेंगे। प्लस OH माइनस से, प्लस OH माइनस मतलब बेस से चालू करेंगे। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेके जाता है। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेके जाता है। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेके जाता है। OH माइनस ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये यहाँ पर उतरेगा, ये इसके ऊपर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो, बोल सकते हो। पेंटावेलेंट ना हो इसलिए ऊपर चला जाएगा, सही बात है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को ले गया बेस, प्लस OH माइनस माइनस वाटर, ये नेगेटिव यहाँ पर आया। और इसका उल्टा अगला स्टेप में करेंगे, प्लस वाटर माइनस OH माइनस, प्लस वाटर माइनस OH माइनस का मतलब होता है वाटर से H प्लस लिया, प्लस वाटर माइनस OH माइनस का मतलब होता है वाटर से H प्लस लिया। वाटर से H प्लस लिया, ये सिंगल बॉन्ड ही है, ये सिंगल बॉन्ड ही है। OH माइनस ये हाइड्रोजन लेके गया, ये बॉन्ड नीचे उतरा, प्लस वाटर माइनस OH माइनस मतलब वाटर। देखो प्लस वाटर माइनस OH माइनस का मतलब क्या होता है, वाटर H प्लस दिया, किसको दिया, O माइनस को। वाटर O माइनस को H प्लस दिया, वाटर O माइनस को H प्लस दिया, OH बन गया। तो ये एसिड कैटलाइज बेस कैटलाइज मैकेनिज्म है। शांति शांति से लिखना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, डरना मत। कभी कभी हम डांट भी दे तो गुस्सा नहीं, दुखी मत होना। गुस्सा क्या होगा तुम मेरे से, हाँ दुखी मत होना। ठीक है, टीचर डांटता ऐसे ही है, जितना मन हो उतना पूछना चाहिए, थोड़ा बहुत टीचर का डांट सुनना भी चाहिए। सुनो, तो एसिड बेस कैटलाइज दोनों मैकेनिज्म में, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया समझ गया। तो ये CH3 है, तो 3 तो हाइड्रोजन, उसमें से 1 हाइड्रोजन पकड़े हैं।
तो एसिड कैटालाइज्ड हो चाहे बेस कैटालाइज्ड हो, एसिड कैटालाइज्ड हो चाहे बेस कैटालाइज्ड हो, दोनों एसिड और बेस कैटालाइज्ड प्रोसेस में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनोलाइजेशन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनोलाइजेशन नहीं होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और लिखा हूँ। अब कुछ मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, मैं अगला मीटिंग स्टार्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगला 4 मिनट के अंदर में हम लोग ये खत्म कर दें, ठीक है। बाकी मैं और नोट्स भेजूंगा और क्वेश्चन भेजूंगा, बाकी बात हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहेंगे। आई गिव यू मोर जॉब, आई गिव यू मोर वर्क, ऑब्वियसली आई गिव यू मोर नोट्स टू बिगिन विद। क्या करते हैं, कीटो का मतलब कीटोन ही जरूरी नहीं है, कार्बोनिल होना चाहिए, एल्डिहाइड होता है। क्या करते हैं, बगल वाला ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर के इसको OH कर देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन लेते हैं, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन लेते हैं। यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन आएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इसका हाइड्रोजन आएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा। 2 अल्फा कार्बन है तो 2 इनोल हो सकता है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों अल्फा कार्बन एक ही है। तुमको समझ में आना चाहिए कि ये और ये एक ही बात है। ये दिस प्लस दिस मतलब ये दोनों अलग अलग है, एंड दिस और दिस का मतलब ये दोनों एक ही है। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो, इतना समझ में आता है तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, समझ में आता है तो ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, दोनों सेम है, इतना तो बुद्धि होना चाहिए। और यहाँ पर दो तरफ से अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल करके ऐसे 2 जगह पाई बॉन्ड आ सकते हैं। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। तो डबल बॉन्ड O वाला को OH कर देना है और बगल में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के पाई बॉन्ड लगा देना है। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मान लो अगर ऐसा रहेगा डबल बॉन्ड हो, मान लो अगर ऐसा रहेगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर 2 मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर 2 मिथाइल लगा हुआ है, CH2 की जगह मिथाइल 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 लगा दिया, देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझ में आता है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, चारों हाथ दिख रहा है, चारों हाथ दिख रहा है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोल सकते हैं नो इनोल, इनोल नहीं बनेगा। जी 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 जी, अगर तुमको दिखाना है कभी इनोलाइजेशन, कभी दिखाना है एसिड या बेस कैटलाइज इनोलाइजेशन, कभी इनोलाइजेशन दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो, ये हाइड्रोजन निकालो, ये यहाँ पे किया, ये इसके माथा पे किया, एक हिसाब से ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। वो थोड़ा सा स्टेप 2 स्टेप में जाता है, पर ये अल्फा हाइड्रोजन ही जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चे लोग, चलो अगला पेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अगला पेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म का। इसमें कोई डाउट है तो अभी 1 मिनट में पूछ लो, 1 मिनट में। कौन सा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद भी समझो, सब कुछ टीचर के ऊपर मत छोड़ो, दिमाग लगाओ अपने, खुद समझो, नहीं बताऊंगा वापस, लिख दिया हूँ, खुद समझो, खुद दिमाग लगाओ। और अपना ये खुद प्रैक्टिस करना होगा, पेन चलाने का आदत डालना पड़ेगा, ये पेन चलाने का आदत डालना पड़ेगा। बेस का काम है हाइड्रोजन निकालना, बेस का काम है हाइड्रोजन निकालना। H प्लस किया, H प्लस कैसे तोड़ रहा हूँ देखूँ, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूँ इसके बाद का मीटिंग में हम लोग को नहीं जाना पड़े, ये सब खुद पढ़ लो यार, देख लो, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सर बोल दो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एंड यू विल वांट टू रीड मोर, यू विल वांट टू रीड मोर, किताब ज़्यादा अच्छा से पढ़ो, किताब ज़्यादा अच्छा से पढ़ो, रीड मोर। मैं 1-2 दिन में और काम भेजता हूँ, कुछ वीडियोस भी भेजता हूँ, कुछ काम भी भेजता हूँ।